Hello everyone. Let's start exercise 2.2. In last exercise, what you have done, you have done just addition and subtraction of the fractions, or you can say rational numbers. In this exercise, you will do the multiplication of the fractions, okay, with the whole numbers or with the fractions. So first question is multiply and reduce the lowest form and convert into a mixed fraction. Okay, now I'll do this question. First one is 7 into 3 by 5. So 7 into 3, numerator को numerator से multiply करेंगे, 7 3 जा 21 by 5 and then convert into the mixed fraction. Mixed fraction में कैसे convert करोगे ये देखिए, 21 को जो denominator है उससे divide करोगे, 5 4 जा 20. This one is रिमाइंडर. सो जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा आपका लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है that is written as a numerator and denominator is same as denominator. Second part is 2 by 3 into 4. This is your 4 to the 8 by 3 and convert into the mixed fraction. Third one is 7 into 2 into 1 by 4. 7 into, then convert it into the improper fraction, 4 to the 8 and 1, 9 by 4. 7 9 ja 63. This is 63 by 4. Then convert into the mixed fraction. Next is 11 into 4 by 7. 11 4 ja 44 by 7. Same, yes. 3 by 5 into 15. 3 15 ja 45 by 5. Yes. And then cut, divide it. 5 9 ja 45. Complete number is the answer. Yes. Then 3 into 5 into 1 by 5. 5 5 ja 25 and 1 26 by 5. Now multiply 3 with 26. 26 ja 78 by 5. Then convert it into the mixed fraction. Next one is 4 into 6 into 1 by 3. 4 into, convert it into the improper fraction, 6 3 ja 18 and 1 19 by 3. Then multiply 4 with 19. This is 76 by 3. Then convert it into the mixed fraction. Next is your find the product. Question number 2. Yes, you have to find out the product. Now you have to find out the product in this question. First part, 2 by 7 into 7 by 9. This is your 2 by 7 into 7 by 9. Multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. 2 7 ja 14, 7 9 ja 63. And if their denominator and numerator have any common number, then divide this by the common number. Divide these. 7 2 ja 14 and 7 9 ja 63. आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप आंसर निकालते हो तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज 9 by 5 into 3 by 5. 9 3 ja 27 and 5 5 ja 25. Then convert into the mixed fraction. Next is 2 by 3 into 2 into 2 by 3. 2 by 3 into 3 2 ja 6 and 2 8 by 3 is equal to 16 by 9 is equal to this one. 2 8 ja 16, 3 3 ja 9. Yes. Fourth part is, बेटा फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. इस क्वेश्चन में देखो मैंने किया क्या, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन मल्टीप्लाई कर दिया. आपके बुक में जो है यहाँ पे 3 into 2 by 5 है, ठीक है, तो आप बुक के अकॉर्डिंग कर लेना इसको. ओके. नाउ बी पार्ट, 11 by 2 into 3 by 10. 11 3 ja 33, 2 10 ja 20 and this convert into the mixed fraction. Next is 4 by 5 into 12 by 7. 4 8 12 ja 48 and 5 7 ja 35. Then convert it into the mixed fraction. आई होप आगे समझाने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन डू इजिली. आपको करना क्या है, जहां पे मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे उसको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर आपके आंसर में कुछ भी कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उससे कट कर दीजिए. अगर नहीं है कॉमन देन चेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. दैट विल बी योर आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज योर सिंप्लीफाई. अब बच्चे देखो, ऊपर तो हमने क्या किया है, 2 2 का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया. यहाँ हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 3 का. इन द सेम प्रोसेस यू विल डू.
देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पे 2/9 इंटू 13/56 इंटू 28/13। यहाँ पे गिवन क्या है, आपको सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 13 इंटू 28, 28 था यहाँ पे, सॉरी मैंने 27 बोल दिया था। यहाँ पे आपका क्या है 9, 56, 13, ठीक है। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स में जो भी हैं, देखो 13 से तो 13 कट हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। 2 इंटू 28 बच गया। अब 28 के हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, ये 2 तो सिंपल यही था ये, दिस इज 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। यहाँ पे 9 को हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3 में, और 57 को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यस 7 से 7 कट जाएगा, और 2 4 जा 2 2 जा और 2, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी कंप्लीट 8 है, ये भी 8 है, हमने क्रॉस कर दिया ना। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1, एंड दिस इज योर 3 3 जा 9। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप यही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करोगे, देन सॉल्व दिस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में भी देखो बेटा सेम है। 16 3 जा 48 एंड 49/16, देन 7 7 जा 49 एंड 3 52/7, देन 39 1 जा 39 एंड 25 64/39। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन ब्रेक डाउन इनटू द प्राइम फैक्टर्स एंड देन मल्टीप्लाई। एंड इन फोर्थ पार्ट यू विल आल्सो डू द सेम। पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, देन कन्वर्ट इनटू द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे इसके। प्राइम फैक्टर्स अगर आपको पूरे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो वो निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको जैसे लग रहा है 4 9 जा कि 4 यहाँ से अगर हम 4 9 जा 36 कर दें तो 9 कट जाएगा नीचे से, यस, तो उसको उतना ही कर लीजिए, यस, देन फाइंड आउट द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड जो 2/3 ऑफ 27। बच्चे इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है आपको 27 का 2/3 पार्ट फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए इधर 2/3 ऑफ 27, हम यहाँ से क्या कर देंगे, 3 9 जा 27 एंड 9 2 जा 18, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यस, देन 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20। जहां नहीं कुछ कट करता होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको ऐसे कैसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। देन 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4, 1/2 इंटू 4 2 जा 8 एंड 3 11/4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए, यस। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ गए। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से टेबल्स आती है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आती है। 3/4 ऑफ 36, 3/4 इंटू 36, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। सेकेंड इज 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 इंटू 3/10, 3 1 जा 3 एंड 7 10 जा 17। 5/8 of 3 into 5/6, 5/8 into 6 3 ja 18, 18 and 5 23, then multiply these, yes। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट में गिवन है 4/5 ऑफ एन ईयर, यस। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 365 डेज, यस, यस। 365 डेज मीन्स 4/5 ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई। हमें बताना है कि इसका कितना पार्ट है 4/5, यस, इंटू 365। अब 5 से इसे कट कर दीजिए, 73 पे कट हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको वैसे कट करना नहीं आता तो 365 को 5 से डिवाइड कर लेना, जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, दिस इज योर 292 डेज। नेक्स्ट इज 4/15 ऑफ एन आवर। आर का मतलब है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि 4/15 इंटू 60, यस, 15 4 जा 60, 4 4 जा 16 मिनट्स, यानी कि 4/15 पार्ट जो है आर का वो कितना है 16 मिनट्स। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज 1/10 ऑफ अ केजी। 1 kg का मतलब 1 किलोग्राम का मतलब क्या है 1000 ग्राम, मीन्स 1/10 ऑफ 1000 ग्राम, दिस इज योर 100 ग्राम, यस। In next question, what you have to find out, which one is greater, this one or this one, this one or this one, yes,
यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसे सोल्व करेंगे। 3/5 4 ऑफ 12/13, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/13 आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इसे सोल्व कीजिए। 4/7 इंटू 7/26, 7 से 7 कट जाएगा, 4 सॉरी इधर देखो मैंने थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया था, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 इन 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ से आप बच्चे करोगे क्या, व्हाट विल यू डू फ्रॉम हियर। यहाँ से देखो हमें निकल गया, ये तो हो गया 9/13 और ये हमारा हो गया 2/13। हमें करना है इनके बीच में कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करोगे तो हम कंपैरिजन में क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 9 जा 117 एंड 13 2 जा 26। अब यहाँ से देखेंगे विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। सो हमारा कौन सा ग्रेटर है, 9/13 ग्रेटर। जब 9/13 ग्रेटर तो इसका मतलब कौन सा पार्ट ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। यस, गॉट इट। इसका 117 ग्रेटर है तो 9/13 ग्रेटर, और 9/13 ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट इज 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। Now look here, this is your 2/7 into 3/4, 3/5 into 5/8. यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4, दिस इज योर 3/14 एंड दिस इज योर 3/8। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सेम वही आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से कौन ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर मीन्स 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, इट मीन्स दिस पार्ट इज ग्रेटर। यस, गॉट इट। Okay, now you have to complete from question number 1 to 6 in your fair notebook. Beta, I know today your class was not there, but your syllabus was means in this chapter, na, so many exercises are there. That's why I solved these questions for you. Okay, so complete this exercise up to question number 6. Thank you. Have a nice day.